So the topic is JavaScript data type. Okay. So JavaScript data type is nothing anything different than any other programming language. If you're going for a programming language, then it should be no. Then it should be like you need there should be a data type. JavaScript variables can hold many data types. Example: numbers, strings, objects, and many more. Now see. Let's see how it is going to happen. The variable of length is equal to 16. Variable of the last name is equal to Johnson. Here it is the variable of X is equal to first name is to Johnson, last name is equal to Doe. Now, how it is possible? How it is possible to get this thing? How it is possible to get this thing? First name and last name. The cons, how it is possible of getting just defining a variable. We go for the numeric thing. Then we when they define a last name, then we get a John. Then we are getting a Johnson. Then there is a variable X, first name. Okay. How to define that? We need to understand how to define this variable and how it has been different. How it has been different than anything else. How it is different? See, it is different because it is using a dynamic structure. Before this, let's go for let's go for Wikipedia. Wikipedia of JavaScript. How it is different? See, by going through this Wikipedia, we will understand the vision of the JavaScript and as well as some basic entities within it. Now, what is JavaScript? JavaScript often observation of JS. So JavaScript is a programming language. First of all, it is what it is. It's a programming language. What is programming language? A programming language is a formal language. It comprises a set of instructions that produces various kinds of output. Programming languages are used in computer programming to implement algorithm. Okay. Programming language is a formal language which comprises a set of instructions that produces the various kinds of output. Programming languages are used in computer programming to implement algorithms. That conforms to the ECMA script. That conforms to the ECMA script. And what is the ECMA script? ECMA script is a scripting language specification standardized by the ECMA standards. Now, what is ECMA? What is ECMA, man? We need to understand what is ECMA. ECMA is just like another standard, ECMA, for the scripting language specification. Like we have W3 school. We have W3 school standardized by ECMA International. It was we have W3 school for the web platforms. Now for the scripting language specification, we have ECMA script, which is standardized by ECMA International. It was created to standardize JavaScript to help foster multiple independent implementations. JavaScript has remained the most widely used implementation of the ECMA script since the standard was first published, with the other implementation including JScript and the ActionScript. What is JScript? JScript is a Microsoft dialect of the ECMA standard that is used in Microsoft Internet Explorer. Understand this very minutely. What is ActionScript?
ActionScript is the object-oriented programming language originally developed by Macromedia Incorporation. It is influenced by the HyperTalk. The scripting language for the HyperCard is now an implementation of the ECMS script, which originally arose as a sibling of both, influenced by the hypertext markup language. Now, JScript something it was used in the Internet Explorer, which was a bundle, bundled up with the Microsoft Windows. And why it is so, I'm specifying it. Initially in the 90s, there was a war of browsers between them. So in that war, new technology was introduced in the browsers. Finally, the war was, you can say, got a win by object-oriented concepts, by open source systems, systems, because everybody was contributing for his wellness. So what really a scripting language is? Scripting language is basically used for the validations from which at the client end, from which the this part of the server side is taken care at the local host, client, the client side only, from which we get something, we get something lesser pressure on the servers. Servers can have a duty to have its original duty, have its duty to get an request and process only. It's not try to in the getting the request is first of all they validate the thing, whether it is whether integer has been defined or not, string has been defined or not. It's like this. So let's do this, and now it is increasing and being used for the writing server applications and server services using Node.js. And what is Node.js? Your seniors are doing their internship on the Node.js. Node.js is open source cross-platform JavaScript runtime environment that is a huge JavaScript code outside of a web browser. Node.js lets developer use JavaScript to write command line tools, and for server-side scripting, running script server-side tool to produce dynamic web page content. Fundamental is that first is validation. Scripting is used for the validation, and second is dynamic web page content. So what is the history? ECM script specification is a standardized specification of a scripting language developed by the Brendan Eich of Netscape. Initially, it was named Mocha, later LiveScript. So Brendan Eich is a developer of a JavaScript as well. And where this CCMA script was developed as Netscape. See, JScript is developed at Microsoft. Netscape was a competitor of Microsoft at the moment of the time, and independent American computer service independent American service company headquartered in Montreal, California. It was written Netscape web browser was once dominant but lost to Internet Explorer and other companies so-called fuzz browser. ठीक है, तो ब्रेंडन इच ने बनाया था JavaScript. It was technology. He was one of the technology used JS. Okay. अब फाइनल देखिए, वही जो नेटस्केप जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया था, उसी कंपटीशन में माइक्रोसॉफ्ट ने जेस्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस किया. अब यहाँ देखिए, आप मोजिला को आप जानते होंगे, आजकल मोजिला फायरफॉक्स बहुत चलता है. ये उसकी हिस्ट्री है लिटिल बिट, कि कैसे इच ने मोजिला प्रोजेक्ट को जेम्स जामस्की के साथ क्रिएट किया, और फाइनली वही मोजिला फाउंडेशन धीरे धीरे ओपन सोर्स में कन्वर्ट हुई. ये साहब सीईओ हुए बाद में, फिर धीरे धीरे मोजिला फाउंडेशन ने कैसे फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश किया अगेंस्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर. एक टाइम आया कि नेटस्केप नेविगेटर आ गया था, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया हुआ ड्यू टू वेरियस इंक्रीमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन दे आर प्रोवाइडिंग. धीरे धीरे और भी चीजें होनी शुरू हो गई. नाउ अंडरस्टैंड दिस.
The ECMA script specification is a standardized specification of a scripting language developed by the Brendan H. of Netscape. Okay. अब इसको समझिए थोड़ा. Initially it was named Mocha, later LiveScript, finally JavaScript. Why JavaScript? इसके पीछे थोड़ा सा अभी और जब हम समझेंगे तो आएगा. इसको आप किनारे रख दीजिए. अब नई चीज जो पॉइंट है उसको समझिए. In December 1995, Sun Microsystem and Netscape announces JavaScript in a press release. In 1996, Netscape announces the meeting of ECMA International Standards Organization to advance the standardization of JavaScript. उधर JavaScript चल रहा है, इधर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि भाई साहब आप JavaScript को स्टैंडर्डाइज किया जाए. तो पहला एडिशन कैसा आया जी? ECMA का 262 was adopted by the ECMA General Assembly in June 1997. Several editions of the language standards have been published since then. The name ECMA scripts was a compromise between the organization involved in standardizing the language, especially Netscape and Microsoft, whose disputes dominated the early standard seasons. देखिए मैं आपसे कह रहा था ना कि पहले लोग में क्या था, डोमिनेशन का वॉर चल रहा था, कौन ज्यादा डोमिनेटेड है. ठीक है. तो धीरे धीरे वो चीज स्टैंडर्ड्स होनी शुरू हुई कि भाई 97, 98, फिर 2009, फाइनली यहाँ से ECMA स्क्रिप्ट 2015 से बहुत सारी चीजें अलाइंड हो गई और बहुत सारी चीजें अलाइंड हो गई. और अब लोग पूरा इंटरनेट वर्ल्ड, पूरा इंटरनेट ब्राउजर, चाहे वो ओपेरा हो, चाहे गूगल क्रोम, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स हो, सब लोग फॉलो करते हैं इसी. ठीक है. फिर यही सब उसमें डेटा है कि क्या क्या था, क्या क्या नहीं था. ठीक है. अब स्क्रिप्टिंग इंजन्स, अब देखो जो वेब ब्राउजर है उसमें जो स्क्रिप्ट कोड चलता है वो चलता है स्क्रिप्टिंग इंजन की तरफ. तो चक्र हुआ, स्पाइडरमंकी हुआ, V8 हुआ, जावास्क्रिप्ट कोर हुआ. तो आप जो है आप देखिए कि कोई भी काम हो रहा है जावा का, अगर जावा कोई परफॉर्मेंस दे रहा है वो वहीं पे दे पा रहा है जहां पे उसका इंजन है JRE. और इसका क्या था, जावास्क्रिप्ट कहां पे काम कर रहा है, जहां पे उसका स्क्रिप्टिंग इंजन है. ठीक है. तो लेट्स सी. तो ये थोड़ा सा आपको ECMA के थ्रू ये बताया मैंने कि जावास्क्रिप्ट का वॉर क्या था और जावास्क्रिप्ट कैसे स्टैंडर्डाइज हुई और ECMA क्या है. ECMA स्क्रिप्ट्स वही स्क्रिप्ट्स हैं जो स्टैंडर्डाइज चीजें देते हैं, जैसे हेड, बॉडी, ये सब क्या स्टैंडर्डाइज है. ठीक है. ऐसे ECMA स्क्रिप्ट्स जो है स्टैंडर्डाइज चीजों को देता है कि स्टैंडर्डाइज कैसी होंगी चीजें. ओके. अब देखिए, ये तो जावास्क्रिप्ट, आगे पढ़ते हैं क्या है. अब देखो ये एक पॉइंट को समझाऊंगा. जावास्क्रिप्ट अब क्या है, जावास्क्रिप्ट इज हाई लेवल. हाई लेवल का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्शन होता है, आप आराम से लिख सकते हैं. वेरिएबल आपने पॉइंट लिखा, बस काम खत्म. ठीक है. ऑफन जस्ट इन कंपाइल, जिट कंपाइलेशन, आप जो चेंज करेंगे, अभी हम जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो दिखाई देगा कि इट्स जस्ट इन कंपाइल्ड. मल्टी पैराडिग्म मतलब क्लासिफाई प्रोग्राम्स लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स. मल्टीपल पैराडिग्म में क्लासिफाई कर सकते हैं. कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स, कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं. डायनामिक टाइपिंग जो वेरिएबल टाइप आप देखे थे कि स्ट्रिंग को भी दे रहा है, नंबर्स को भी दे रहा है. प्रोटोटाइप बेस्ड स्टाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन विच बिहेवियर यूजेस परफॉर्मेंस बाय प्रोसेस ऑफ रिविजिटिंग. ये आप समझ जाएंगे प्रोटोटाइप बेस्ड जब आपको बताऊं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बहुत बार डिस्कस किया मैंने, कहा C++ घर पे पढ़ना. फर्स्ट क्लास फंक्शन, तो आप फर्स्ट क्लास फंक्शन कैसे काम करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे. फर्स्ट क्लास फंक्शन एक तरीका होता है, जब फंक्शन के थ्रू ही हम हर काम करते हैं तो फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन मान लेते हैं. अब आगे इंपॉर्टेंट लाइन है कि along with HTML and CSS, JavaScript is one of the core technologies of World Wide Web. तो एक हो गया जी प्रेजेंटेशन के लिए, एक उसके थोड़े
CSS आप जो होता है, एक हो गया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जी, हमारा जो हमारे साहब जो है ना, ये HTML साहब, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, CSS आप प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो और जावास्क्रिप्ट वाले भाई साहब जो हैं, जावास्क्रिप्ट वाले भाई साहब प्रोवाइड करते हैं जी बिहेवियर, कि वेब पेज का बिहेवियर क्या रहेगा। तो HTML के थ्रू हम क्या निकालते हैं उस स्ट्रक्चर में, तो HTML के थ्रू हम क्या लिखते हैं, कंटेंट। जो HTML का स्ट्रक्चर है वो क्या डिफाइन करने का काम आता है, कंटेंट। फिर HTML CSS में प्रेजेंटेशंस जो होती है उसको हम किसके थ्रू करते हैं, लेआउट। CSS के जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए, तो आप देखो यहाँ पे, तो HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी कोर टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब कॉमनली हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। वो कैसे काम करता है इसमें हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। URL क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, चीजें कैसे चलती हैं। The vast majority of websites used in the client-side page behavior and all major web browsers have directed JavaScript engine to execute it. मैंने आपसे कहा था ना कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं, चाहे जो भी हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, जावास्क्रिप्ट इंजन के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है, जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंजन वाज मेयर इंटरप्रेटर। क्या था, इंटरप्रेटर की तरह काम करता था। बट और रिलेवेंट मॉडर्न इंजन्स यूटिलाइज जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। मॉडर्न इंजन्स कैसे काम करते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन फॉर इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट इंजन्स आर टिपिकली डेवलप्ड बाय वेब ब्राउजर वेंडर्स। Every major web browser has one. In a browser, the JavaScript runs concerned with a rendering engine. कैसे होता है जी, ब्राउजर इंजन, ब्राउजर की कंपनीज बनाती हैं जावास्क्रिप्ट इंजन, और उसको क्या कहते हैं जी, रेंडरिंग इंजन बाय द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। उसका कौन सा मॉडल यूज करती है, XML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। रन्स इन कंसर्ट, मतलब जो हम लोग XML में पढ़े थे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और रेंडरिंग इंजन, वो उसी के कंसर्ट में चलाते हैं, मतलब उसी को लेके भी चलते हैं। लॉन्ग टर्म में भी हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो है, जो एक और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लॉन्च हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, तो जावास्क्रिप्ट प्लस XML करके उन्होंने एक एजेक्स नाम का एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाया था। अब मैंने बहुत बार कहा था कि जो गूगल मैप है वो आपके एजेक्स पे काम करता है। जो आप ऐसे सर्च करते हैं ना, जैसे आपने लिखा विकी, ठीक है, आपको ये सब बहुत सारी विकी में आपने जब लिखना शुरू किया ना सेशन, तो जितनी भी नीचे चीजें आ रही हैं, ये जो हेल्प है, ये जो प्रोग्रामिंग है, वो एजेक्स की प्रोग्रामिंग है। फिर इन्होंने बताया ना कि भाई ब्रेंडन साहब इंपॉर्टेंट थे कि द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंजन वाज क्रिएटेड टू मेंटेन नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर के लिए, क्योंकि वही उसके डेवलपर थे भाई जावास्क्रिप्ट कोड के, रन टाइम कोड्स के लिए। फिर पहला मॉडर्न इंजन जावास्क्रिप्ट का है V8। कौन बनाया था, गूगल। इसीलिए एकदम से गूगल क्रोम बहुत आगे बढ़ गया था, क्योंकि V8 जावास्क्रिप्ट इंजन 2008 में उन्होंने बनाया और बहुत तेजी से वो काम करने लगा। वो जितने भी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट्स थे उनको रेंडर करने लगा, उनको रीड करने लगा। तो उसमें की इनोवेशन क्या था, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। पहले वाले में इंटरप्रिटेशन होता था और यहाँ पे क्या होता था, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन होता था। इससे एग्जीक्यूशन टाइम्स इंप्रूव कर गया, पेज और डायनामिक जो है बढ़ गया। ठीक है, और डायनामिक मजा है। अब अच्छा, हमें अटेंडेंस भेज देना भाई कोई। अब आप देखो, तो इनिशियल में इंटरप्रेटर से स्टार्ट हुआ जो रिलेशन था, वो कहाँ पे आके खत्म हुआ, वो आके खत्म हुआ जी कि कैसे आप फिर गूगल क्रोम ने V8 बनाया, जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के कॉन्सेप्ट। ऐसे ही एप्पल भाई ने नाइट्रो इंजन बनाया, सफारी के लिए नाइट्रो इंजन बनाया। तो नेटस्केप के लिए बना इंटरप्रेटर टाइप का एक इंजन, ठीक है। एक जो है इंजन बनता है गूगल क्रोम के लिए V8, और एप्पल ने डेवलप किया नाइट्रो इंजन फॉर सफारी ब्राउजर्स। इट वाज 30% बेटर देन 4.37।
मोजिला ने फिर अपना स्पाइडर मंकी इंजन बनाया। देखिए कि हर 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 ब्राउजर का अपना अलग अलग जावास्क्रिप्ट का इंजन है। जावास्क्रिप्ट इंजन V8 किसका है भाई? गूगल क्रोम का। जावास्क्रिप्ट इंजन आप और भी हैं। जस्ट इन पहले वाले में क्या होता था? इंटरप्रिटेशन। अभी क्या होता है? अभी क्या होता है? अभी क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। ठीक है, तो नाउ अंडरस्टैंड दिस। एप्पल के पास अपना एक सफारी ब्राउजर, उसमें क्या होता है? नाइट्रो इंजन। और मोजिला में क्या होता है? स्पाइडर मंकी। ये थोड़ा डीप में हम जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, समझ जाइए आप। तो 2017 में वेब असेंबली, 2017 में सभी ब्राउजर से इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि हम ओपन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे जो बाइनरी कोड और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में काम करेगा और करेस्पॉन्ड करेगा। ओपन असेंबली बिकम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम रिकमेंडेशन। ठीक है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। Open Assembly became a World Wide Web Consortium recommendation on 5 December 2009 alongside HTML, CSS, JavaScript, the 4 languages to run natively in browsers. ठीक है, इसीलिए आजकल डेवलपमेंट के जो तरीके डेवलप हो अलग जा रहे हैं, बहुत सारा हम स्क्रिप्टिंग पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्टिंग हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हम अलग अलग टाइप के जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, World Wide Web Consortium maintained the standard contribution of the Mozilla, Microsoft, Google, Apple। अभी 4 तरीके की ही लाइन है। ये ओपन सोर्स है, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, ये गूगल अपनी एक राजसभा बना रखा है, और एप्पल साहब को तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे वेब असेंबली क्या है? Web assembly is open standard that defines portable binary code format for executable programs. Portable binary code formats। अच्छा, ये क्या होते हैं जी? ये भी समझिए। बाइनरी कोड आप जानते होंगे, 2 वे सिस्टम जो 0-1 वाले होते हैं। Corresponding textual assembly languages। ये असेंबली लैंग्वेजेस आप अगर आपके जो दोस्त होंगे ना माइक्रो प्रोसेसर वाले, वो अच्छे से जानते होंगे। असेंबली लैंग्वेज में क्या है? न्यूमोनिक्स होते हैं थोड़े। अभी वो पहले निमोनिक्स का यूज होता था, अब हम निमोनिक्स को बीच से हटा के सीधे बाइनरी कोड में चेंज कर दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं जी WASM। Main goal of WebAssembly is to enable high performance applications on web page, but the format is designed to execute an integrated environment as well। ठीक है, अब जब डायरेक्ट 0-1 में चेंज होगा तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। तो हम चाहते क्या है कि वो अलग अलग एनवायरमेंट्स की भी चीजें चले। तो ये आपको बता ही चुका है कि भाई, बताया जा चुका है कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद वेब असेंबली भी चीज फोर्क नेटिवली रन करती है ब्राउजर्स पे। तो इन ऑर्डर टू WASM जो है, WASM जो वेब असेंबली है, उसको यूज करने के लिए SDK का यूज किया जाता है। यू नो, इसको कहते हैं सोर्स टू सोर्स कंपाइलर, Emscripten। ठीक है, अब ये C++ के कोड्स देते हैं। ठीक है, तो वो LLM सपोर्ट सच एज, अब देखिए LLVM क्या है? कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज टू सेट अप कंपाइलर एंड टूल चेन टेक्नोलॉजीज। आप देख रहे हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है कि टेक्नोलॉजीज के ग्रुप्स बन रहे हैं, टेक्नोलॉजीज के सपोर्ट। ये डी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, DLang, मल्टी पैराडाइम सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रस्ट क्या है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रहे हैं नए नए। गूगल, फेसबुक ने अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया, तो वेब को उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। तो उस वेब को प्रिपरेशन के लिए ही हमने WASM या ये कहीं वेब असेंबली का यूज किया। ये कहीं से भी आपके कोर्स में नहीं, हम थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएं कि जावास्क्रिप्ट की चीजें कहाँ से शुरू हुई, वेब ब्राउजर की हिस्ट्री क्या थी, नेटस्केप नेविगेटर क्या था, गूगल फिर कैसे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से आ गया, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे, फिर वही नेटस्केप नेविगेटर के वाले भाई साहब जो मोजिला फायरफॉक्स में जुड़े, फिर मोजिला फायरफॉक्स में ओपन सोर्स था, फिर वहां से उन्होंने अपने अपने इंजन्स बनाए, और इंजन्स बनाने के बाद एक इंटरप्रेटर था, फिर नया इंजन आया जस्ट इन टाइम कंपाइलर V8, फिर गूगल क्रोम ने और एडवांस इंजन बनाया V8, फिर एप्पल ने इंजन बनाया। ठीक है, तो फिर एप्पल ने अपना नाइट्रो इंजन बनाया, फिर मोजिला एप्पल की कुछ चीजों को लेके स्पाइडर मंकी इंजन बनाया, तो जिससे वेब ब्राउजर फास्ट चले। तो कहते हैं ना बहुत फास्ट वेब ब्राउजर। लेकिन अभी भी देखिए जो अब यूसी ब्राउजर है उसका बहुत ज्यादा नाम आम नहीं है।
वो चाइनीज ब्राउजर है, उसको वो स्पेसिफिकेशन में बहुत आता है, वो सबसे चुरा लेता है चीजों को। तो ये सब है, देखिए यही 4 ब्राउजर बार बार आ रहा है। यूसी ब्राउजर का नाम देखिए अभी कहीं, यूसी ब्राउजर विकी पे आप देखिए, ये चाइनीज लोग का है, तो चाइनीज लोग जानते हैं एकदम खतरनाक आदमी होते हैं। ये सबकी प्रॉपर्टी चुरा के अपना ही प्रॉपर्टी बना लेते हैं। देखिए 2005 में J2ME एप्लीकेशन के लॉन्च हुआ, फिर एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी ओएस, आईओएस, जावा, एमई, सिम्बियन, विंडोज फोन, माइक्रोसॉफ्ट सबको यूज कर लिया। और मैं सही बता रहा हूँ, इसमें सब यूज हो सकता है, HTML5, वेब ऐप, एड ऑन सब चलता है। देखिए HTML5 की फीचर्स हैं, एडवांस चीजों को इसने पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस वजह से इस सिक्योरिटी को यूज करता है। अब यूसी वेब डेवलपर कौन है? अलीबाबा ग्रुप जो है, जो अलीबाबा सुने होंगे ग्रुप, उन्हीं के हैं ये, ठीक, अलीबाबा ग्रुप को ये के हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ चलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं ये ऐसा, इन्होंने जितनी भी तरीके, ये लोग तो अपना स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं, इस लड़के ने सब स्टैंडर्डाइजेशन को पढ़ा समझा अपने हिसाब से मैनेज कर लिया। और ये एडवांस जो तरीके, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, HTML5, वेब ऐप, एड ऑन, तो उसको सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से लोग इसको इंस्टॉल करते हैं कि भाई हमारा सब कुछ चलता है। क्यों चलता है ये नहीं मालूम, क्यों नहीं चलता है ये नहीं मालूम, क्योंकि बहुत बार हमारा वो जो इंजन है वो सपोर्ट नहीं करता है अलग अलग स्क्रिप्टिंग से, अलग अलग एडॉन्स को। वेब असेंबली के बारे में आप लोगों को पता चल गया, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। चौथा, थोड़ी अभी रीसेंट चीज है एकदम, पहली दफा ये 2015 में अनाउंस हुआ था। आजकल बोट्स, आज ऑटोबॉट्स बहुत काम करते हैं ना। फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन एग्जीक्यूटिंग यूनिटी एंग्री बॉट्स इन फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, प्रिकर्सर टेक्नोलॉजीज ASM.js। ASM.js ये भी टेक्नोलॉजी है जो आपके मोजिला और गूगल नेटिव क्लाइंट में चलता है। अब सैंडबॉक्सिंग, गूगल नेटिव क्लाइंट में टेक्नोलॉजी होती है सैंडबॉक्सिंग की, हार्डवेयर की चीजों को आप कैसे पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल कोड बनाते हैं। अब ये भी आपको एक्सप्लोर करने के लिए हमने दे दिया है कि ये क्या करता है। सैंडबॉक्स अलाउज रनिंग नेटिव कोड फ्रॉम अ वेब ब्राउजर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अलाउज वेब एप्स टू रन नेटिव स्पीड व्हिच अलाइंस गूगल ट्रांसफर द क्रोम ओएस। इसमें क्या होता है कि यूजर से इंटरेक्ट ही नहीं करता। पूरा प्रॉब्लम हाई लेवल और लाइट वेटेड और हैवी वेटेड प्रोग्राम का था कि जब हम कोई वेब ब्राउजर पे चीज चलाते थे तो वो उसका इंटरेक्शन ओएस से होता था। इसमें क्या होता है, ओएस से इंटरेक्शन ही नहीं होता है वेब ऐप से, ये डायरेक्ट नेटिव कोड पे चलता है, इसलिए बहुत फास्ट चलता है, 0 में डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, कोई बीच के पोर्शंस नहीं है, इस वजह से इसे हम वेब असेंबली में डाल देते हैं और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब क्योंकि वेब ब्राउजर एक तरीके से आदमी फ्री में लेना चाहता है, तो फिर बहुत सारे तरीके से कंपनी इनको इम्प्लीमेंट करती है कि भाई लोकल लेवल पे लोग क्या चाहिए और एडवांस कंपनीज को क्या चाहिए। अब आप देखिए टिम स्क्रिप्ट कंपाइल्स करता है C++ के कोड को WSM में, और इसके जो कंपाइलेशन है ये जो LLVM कंपाइलर इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। अभी एक पूरा कंपाइलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है, तो C++ जितने भी नेटिव लैंग्वेजेस हैं उस सबके कोड को उठा कर रख लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको C++ तो आना ही चाहिए कि कोई भी कोड आप C++ में बना सकें, ठीक है। तो आपका वो, अगर आपको इतना पता है कि C++ में ऐप कैसे बनाते हैं, तो फिर आप चलिए चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए क्यों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए 2015 में कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है, फाइनली स्टैंडर्डाइज होता है 5 दिसंबर 2019 को। तो बहुत सारे सिक्योरिटी के कंसिडरेशंस हैं, फिर एम्बेडिंग की जाती है, जावास्क्रिप्ट के और वेब एम्बेडिंग की जाती है। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वर्चुअल मशीन है, वास्तविक प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन सेट है, कोड रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीजें। तो हम थोड़ा, तो आप आज समझे जावास्क्रिप्ट क्या है, वेब असेंबली जो चौथा चीजें कैसी होती हैं, गूगल नेटिव क्लाइंट क्या है, मतलब सैंडबॉक्सिंग क्या होती है कि गूगल C++ के कोड को डायरेक्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट के वेब ब्राउजर में चला देना, ये है, ठीक है। और अब हम लोग कहाँ थे? जावास्क्रिप्ट पे ना, हाँ। अब आइए, तो इन पे यहाँ तक हमने समझा कि भाई ये ब्राउजर पे कैसे कैसे काम करते हैं।
अब यहाँ पे आप देखो ये क्या क्या सपोर्ट करते हैं, इवेंट ड्रिवन फंक्शनैलिटी, इंपरेटिव प्रोग्रामिंग स्टाइल। इंपरेटिव मतलब ये होता है प्रोग्राम का यूजर स्टेटमेंट चेंज द प्रोग्राम स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर देता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई बनाने में काम आएगा। कैसे काम आएगा, क्योंकि इसमें हम टेक्स्ट, स्टेट, रेगुलर एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसको सपोर्ट करने के लिए वेरियस एपीआई इन चीजों को कनेक्ट करके हम बहुत सारे फंक्शनैलिटीज को पूरा कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर के डोमेन का। अब ये देखिए, ये नेटस्केप समझा दिया, माइक्रोसॉफ्ट समझा दिया, जावास्क्रिप्ट कैसे पढ़ा ये समझा दिया, ठीक है। फीचर्स इंपरेटिव है, स्ट्रक्चर्ड है, वीकली टाइप्ड है, क्योंकि हम वीकली टाइप्ड इस वजह से, अगर स्ट्रिक्ट होता तो आप चेंज नहीं कर पाते। स्ट्रिक्ट होता ना तो एक चीज को आप एक ही काम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस ऑपरेटर ऑपरेंट की तरह स्ट्रिंग यूज करता है और ऑपरेंट्स नंबर्स की भी ऐड कर लेता है, तो ये वीकली टाइप है। स्ट्रिक्ट टाइप में क्या होता है कि जो प्लस है सिर्फ ऐड ही करेगा या तो कॉन्केटेनेशन ही करेगा, ठीक है। फिर डायनामिक होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होता है, रन टाइम इवोल्यूशन होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन की वजह से, ठीक है। प्रोटोटाइप यूज करता है ये अपने प्रोग्राम को यूज करने के लिए। फंक्शन का हेल्प लेता है, फंक्शन एज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर होता है, फंक्शन एज अ मेथड्स होता है, ठीक है। फिर फंक्शनल होती हैं चीजें, फिर डेलीगेटिव होती हैं। तो फंक्शंस के अपने रूल्स एंड ट्रेड्स हैं, ऑब्जेक्ट कंपोजिशंस हैं। अब रन टाइम इन्वायरमेंट, वेरिएटिक फंक्शन, एरे ऑब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे लेता है, ये सब इसकी चीजें हैं। वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो और आपको समझ में आएगा। तो बस इंट्रोडक्शन के लिए है कि ये सब चीजें आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और आप सर्च हम लोग देखते हैं, जावास्क्रिप्ट बेस्ड लैंग्वेजेस। आप देखिए जावास्क्रिप्ट को करने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। अन्य फ्रेमवर्क्स पे आजकल डेवलपमेंट्स होते हैं, ये जितने भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स, एंगुलर, रिएक्ट, जेक्वेरी, व्यूजेएस, एक्सटी.जेएस, एम्बर.जेएस, मेटावायर, मेथ्रेल, नोड.जेएस बहुत फेमस है, एंगुलर बहुत फेमस है, रिएक्ट बहुत फेमस है। अपने सीनियर से आप सुनते होंगे कि हम रिएक्ट पे काम करते हैं, हम एंगुलर पे काम करते हैं, बैकबोन.जेएस, ठीक है। तो ये वो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं जिस पे जावास्क्रिप्ट काम करती है, ठीक है। देखिए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में चीजें कैसे चल रही हैं, क्या कैसे होता है, तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट में मॉडल व्यू कंट्रोलर को कैसे यूज करते हैं। अच्छा, मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कैसे किया जाए। आप मॉडल बनाते हैं, फिर उसके डेट्स लगाते हैं कि उसको कैसे यूज किया जाए, फिर यूजर उसको देखता है, फिर कंट्रोल करता है, फिर मैनिपुलेट करते हैं, साइकिल चलती है। ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन जानिए कि ये काम आता है। और ये जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो काम करने में हमारी मदद करते हैं। एंगुलर है, रिएक्ट है, व्यूजेएस है, मेटावायर है, मिथ्रेल है, पॉलीमर है, ऑरिला है। तो ये है इंट्रोडक्शन एक जावास्क्रिप्ट का कि एक्चुअली में जावास्क्रिप्ट है क्या, जो आप पढ़ेंगे वो किस हिसाब से चलेगा। तो मैंने ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन इसी वजह से दिया है कि आपको समझना आसान हो जाए कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जावास्क्रिप्ट का। Tomorrow we will go for JavaScript data type.